5 मिनट यहीं रहना, केवल 5 मिनट के बाद चले जाना। एसी ऑन नहीं हुआ ना? Okay, so good morning to all. Today we are going to discuss about home state quota, that is domicile aspect. It's one of the very important information while deciding for NEET preparation. My good name is Ravi Ranjan Pandey and I am working with Dakshina for the last 8 years. Currently, I am executing the responsibility of Program Director for Academics. Without taking you much time, directly we will come on this point. And for first 20 to 30 minutes, I would like to express the points that we are going to tell you. And after that, we will have a Q&A session where you can ask your queries and I will try to answer it as per my knowledge, as per my information. So let's begin the session. Mainly we will focus on 3 points. Hopefully it was shared to all of you through mail and I believe that all of you have gone through that. First point is understanding the difference, that is all India quota versus ये बार बार ये क्यों आता है? आएगा क्यों यार बार बार? क्या प्रॉब्लम आ रहा होगा इसका? Just wait and see. इसका कुछ तो है. ठीक है. And second point is importance of domicile and class 12th passing, from where we are passing our 12th class. And third point is obviously what are the key points that you all should keep in your mind while taking the decision whether to join the program for NEET at Pune or not. Fine. So let's begin one by one. इसको सेव कहाँ से कर दें? Fine. Right one. So basically जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या नीट का हमारा प्रिपरेशन है, व्हाट इज आवर प्राइम फोकस? Naturally, the first requirement is that all of us should be getting the seat in some of the government medical college. Is it right? अपना जो प्राइम फोकस है, हम सब लोग जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं, हमारा जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होता है कि हमें किसी न किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट हासिल करना है. नाउ द थिंग इज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट लेने के लिए आज के डेट में जो ऑल इंडिया का अपना प्रोसेस है, जो हमारा पूरे गवर्नमेंट के किसी भी कॉलेज की बात कर ली जाए, ठीक है, द स्टैंडर्ड फॉर्मूला इज आउट ऑफ ऑल द अवेलेबल सीट्स आर डिफाइंड एज 2 कैटेगरी. वन इज ऑल इंडिया कोटा एंड सेकेंड वन इज होम स्टेट कोटा. होम स्टेट कोटा का मतलब क्या होता है? मतलब ये हुआ कि लेट से यदि मैं महाराष्ट्र का रेसिडेंट हूँ, लेट से यदि मैं कर्नाटका का रेसिडेंट हूँ, तो जो कर्नाटक के जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनमें से 85% कॉलेज का जो सीट होता है वो रिजर्व होता है केवल और केवल कर्नाटक के बच्चों के लिए. यदि मैं महाराष्ट्र का हूं तो महाराष्ट्र का 85% सीट केवल और केवल महाराष्ट्र के बच्चों के लिए डिफाइंड होता है. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ होम स्टेट कोटा. नाउ टॉकिंग अबाउट ऑल इंडिया कोटा, सो रिमेनिंग 15% सीट्स आर जस्ट अगर किसी कॉलेज के पास लेट्स से कि सब मिलाकर के एमबीबीएस के लिए 200 सीट्स हैं, सो आउट ऑफ 200 सीट्स only and only 30% seats can be occupied by students from other states. However, there 170 seats will be reserved for the student of that particular state only.
right? So this is one of the most important data that you should be aware about this government medical college. Now talking about all over India, how many colleges are there and what is the available seat. So for that purpose I am sharing with you the stats. So basically all over India we can segregate all the colleges in three categories. First one is government college or government society type of college. Second one is run by some of the trust or some society, and third one is private college. So all over India as on today we have something around 352 colleges which are run by any of the government body. 270 colleges are run by trust or some society. However, 21 colleges are there which are run by some of the private institution. In these colleges we have something around 51,000, exact number is 51,548. We are just mentioning here approximate number. 51,000 seats are there. In society run colleges we have something around 43,000 seats. However, in private colleges we have only 3,000 seats. Now these are type of college, these are number of college, and these are total seats. विजिबल है ना सभी को प्रॉपर? एनीवन कैन जस्ट कंफर्म? यस सर. ओके ग्रेट. सो आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो आप देख पा रहे हो कि जो हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें सब मिला के पूरे भारत में तकरीबन 50,000 के आसपास 51,000 सीट्स हैं. सोसाइटी या ट्रस्ट का मतलब ये हुआ कि इसमें से देखो अपना जो मेन पर्पस है, अपना पर्पस क्या है कि मुझे ऐसा कॉलेज में एडमिशन लेना है जिसमें कि कॉलेज का फी ना हो या बहुत नॉमिनल हो. बिकॉज हमारा जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो इस टाइप का है कि हम बड़े कॉलेज या महंगे कॉलेज एफर्ट नहीं कर सकते हैं. सोसाइटी या ट्रस्ट वाले कॉलेजेज ऐसे हैं जिनमें से कुछ कॉलेज तो ऐसा है जहाँ पे कि फ़ी नॉमिनल है, बट मेजोरिटी ऑफ द कॉलेज ऐसे हैं जिसपे कि फ़ी काफ़ी हायर एज पे होता है जो नॉर्मल MBBS कोर्स का फ़ी है. सो यहाँ पे हमारे पास सीट है 43,000. प्राइवेट कॉलेज में 3,000. ये प्राइवेट कॉलेज पक्का वैसे वाले कॉलेज हैं जिसका फ़ी बहुत हायर एज पे है. नाउ कमिंग टू द ऑल इंडिया कोटा. यदि हम ऑल इंडिया कोटा की बात करें जो कि केवल और केवल 15% होता है, राइट? तो ये जो हमारा 15% का नंबर है, अगर हम इसको एग्जैक्ट नंबर देखने की कोशिश करें, सो हियर वी हैव जस्ट 7,732. हियर वी हैव अप्रोक्सीमेटली 6,497 and here we have something around 473. So out of 51,000, only 8,700 seats are there which is available for any student throughout the India. However, rest of the seats are only and only available for the students from the particular state. Right. सो ये जो हमारा नंबर है 7,000 का नंबर है, यदि मैं ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज लेना चाहता हूं तो मुझे ऑल इंडिया के टॉप 7,700 बच्चों में आना होगा. ठीक है, ये हो गई पहली बात. अब आते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट पे. सेकेंड पॉइंट हमारा ये है कि जो ध्यान रखना, होम स्टेट कोटा मिलने के लिए देयर आर 3 पैरामीटर्स. फर्स्ट वन इज डोमिसाइल विच इज ऑल्सो कॉल्ड रेसिडेंस. हमारा जो निवास प्रमाण पत्र है, हमारा जो रेसिडेंस है वो किस स्टेट का है. मैं जिस स्टेट को बिलोंग करता हूं, हर एक स्टेट का अपना अपना क्राइटेरिया होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा रेसिडेंस बनता है. हम में से हर एक मेंबर का कहीं ना कहीं किसी न किसी एक स्टेट का रेसिडेंस होता है. सो दैट इज पॉइंट नंबर 1.
पॉइंट नंबर 2 इज हमने क्लास 10th कहां से पास आउट किए हैं। सो ये जो दो चीजें हैं ये तो आपकी प्री डिफाइंड है, इसमें तो आज के डेट में कोई मॉडिफिकेशन अब नहीं आ सकता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मैं क्लास 12th कहां से कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, हम में से जब सभी बच्चे जेएनवी पुणे कैंपस को ज्वाइन करेंगे, सो एज पर आवर सर्टिफिकेशन वी विल बी पासिंग क्लास 12th फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट। ध्यान रखना, अब इसके बाद से समझने वाला, डिसीजन लेने वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है। रीजन बीइंग कि महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जिसके रिक्वायरमेंट है कि हमारा जो रेसिडेंस होना चाहिए बच्चे का वो भी महाराष्ट्र का होना चाहिए, हमारा जो 10th क्लास पास आउट होना चाहिए बच्चा वो भी महाराष्ट्र से पास आउट होना चाहिए, और 12th क्लास जो पास आउट होना चाहिए वो भी महाराष्ट्र से होना चाहिए। विच मीन कि एनडीएसटी एनसीएसटी में सिलेक्टेड सारे बच्चों में से जो बच्चा का होम स्टेट महाराष्ट्र है वो तो महाराष्ट्र के होम स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल है, राइट। महाराष्ट्र के बच्चे महाराष्ट्र के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट लेने के लिए एलिजिबल होंगे अगर वो पुणे आकर के पढ़ाई करते हैं। रीजन बीइंग उनका डोमिसाइल महाराष्ट्र का है, उन्होंने 10th महाराष्ट्र से पास आउट किए और उनका 12th भी महाराष्ट्र से होगा। बट महाराष्ट्र छोड़ करके जो बाकी बच्चे हैं ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोना से जब यहाँ आएंगे, चूंकि उनका डोमिसाइल और 10th क्लास महाराष्ट्र का नहीं है, दैट इज वाई they will not get the home state quota in Maharashtra colleges. That is point number 1. ये बात हम सबको एकदम ध्यान में रखना है कि जेएनवी पुणे में जो भी आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे महाराष्ट्र का होम स्टेट कोटा के लिए केवल और केवल वही बच्चे एलिजिबल हैं जिनका कि 10th क्लास या जिनका डोमिसाइल महाराष्ट्र का है। अगर मेरा डोमिसाइल और 10th क्लास महाराष्ट्र से नहीं हुआ है तो इट मींस कि मैं महाराष्ट्र के होम स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल नहीं हूं। नाउ सेकेंड पॉइंट इज, बाकी बच्चे जो कि महाराष्ट्र से नहीं हैं, जो नॉन महाराष्ट्र के बच्चे हैं, उनके लिए ये तो कंफर्म है कि महाराष्ट्र में होम स्टेट नहीं मिलेगा। बट उन्हें किस चीज का ख्याल रखना है कि मेरा अपना स्टेट में, फॉर एग्जाम्पल मैं झारखंड से आ रहा हूं, मैं एमपी से आ रहा हूं, मैं किसी और XYZ स्टेट से आ रहा हूं, तो मुझे ये जरूर इंश्योर कर लेना चाहिए कि क्या मेरा होम स्टेट में मुझे डोमिसाइल के बेसिस पे होम स्टेट कोटा के लिए हम एलिजिबल हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो स्टेट्स है उसके हिसाब से लगभग हाफ ऑफ द स्टेट, 50% स्टेट ऐसे हैं जो कि ये डिमांड करते हैं कि आपका 12th मेरे ही यहां से होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं कर्नाटक की बात करूं तो कर्नाटक ये कहता है कि यदि बच्चा 12th क्लास कर्नाटका से किया है तब तो उसे कर्नाटक के होम स्टेट कोटा के लिए एलिजिबिलिटी है, गिवन द फैक्ट कि वो अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। बट यदि कर्नाटक का बच्चा 12th क्लास कर्नाटका से पास आउट नहीं है तो विच मीन्स कि उसे कर्नाटक में होम स्टेट कोटा नहीं मिलेगा, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उसे जो है महाराष्ट्र में भी नहीं मिलेगा, कर्नाटक में भी नहीं मिलेगा, या फिर उसे कह लो तो उसे ऑल इंडिया कोटा के लिए फाइट करना होगा। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, 12th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम 12th कहां से पास आउट हो रहे हैं। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिनको कि 12th क्लास से कोई विशेष मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसे मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सब स्टेट्स हैं जो 12th को वेटेज नहीं देते हैं। 12th स्टूडेंट कहीं से पास आउट हो रखा है उसके उनको कोई मतलब नहीं है, उनका सिंपल सा है कि डोमिसाइल यहाँ का है कि नहीं, 10th है कि नहीं, उतनी ही एलिजिबिलिटी को वो देख करके और उसको होम स्टेट कोटा दे देते हैं। सो कंक्लूजन इज कि आपको इस चीज को प्रॉपरली चेक करना है कि आपका जो होम स्टेट है वो नीट में होम स्टेट कोटा रिजर्वेशन देने के लिए, जो कि ओवरऑल सीट्स का 85% होता है, क्या क्या क्राइटेरिया डिमांड कर रहा है। क्या वो केवल डोमिसाइल मांगता है क्या? यदि वो आपका स्टेट केवल और केवल डोमिसाइल मांगता है तो आपको जेएनवी पुणे जरूर आना चाहिए, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यदि वो डोमिसाइल और क्लास 10th मांगता है तो भी आपके लिए कोई इशू नहीं है। बट यदि वो डोमिसाइल 10th के अलावा आपका 12th का डिमांड करता है कि 12th आपको मेरे ही स्टेट से किया होना चाहिए, इन दैट सिचुएशन यू हैव टू टेक द कॉल कि क्या मैं ऑल इंडिया कोटा के सीट्स के लिए फाइट करने के लिए विलिंग हूं क्या। बिकॉज आपका होम स्टेट कोटा जो है आपका जो होम स्टेट कोटा है वो तो टोटली क्लोज है। यदि आपका स्टेट ये डिमांड करता है कि आपको 12th क्लास हमारे पास से ही करा होना चाहिए, तब जाकर के आपको होम स्टेट मिलेगा। तब आपको ये क्लियरली समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब ये होता है कि मुझे केवल और केवल ऑल इंडिया कोटा के लिए फाइट करना पड़ेगा। बात क्लियर है क्या? हेलो सर। हाँ, मैं क्वेश्चन बाद में लूंगा मैम, अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अपने साइड से। सो जो जो चीजें बताई जा रही है बच्चों वो क्लियर है? कोई हाँ नहीं बोलो। ठीक है, राइट। इसमें से कोई बात को रिपीट करना है क्या? ठीक है, फाइन। देखो अभी तक जो इतनी देर तक मैं होम स्टेट ऑल इंडिया, होम स्टेट ऑल इंडिया, ठीक है मैं बोलता हूं। अभी तक जो हमने ये कहना चाह रहा है कि यू हैव टू चेक फ्रॉम योर पर्टिकुलर स्टेट कि आपके स्टेट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए और होम स्टेट कोटा के लिए एलिजिबिलिटी हासिल करने के लिए जो 85% होता है टोटल सीट्स का, क्या आपका स्टेट ये डिमांड करता है कि बच्चा 12th क्लास केवल और केवल मेरे यहां से पास आउट होना चाहिए? यदि आंसर इज यस, देन यू हैव टू थिंक वेरी 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 प्रिकॉशनरी वेदर यू वांट टू ज्वाइन जेएनवी पुणे कैंपस और नॉट। रीजन बीइंग कि एक बार जब आप पुणे आ जाओगे तो आपका जो 12th क्लास है वो जेएनवी पुणे से दिखेगा या महाराष्ट्र से दिखेगा, दैट इज महाराष्ट्र से दिखेगा। तो वो जैसे ही दिखता है और आपका स्टेट मांगता है कि आप 12th हमारे यहां से करो, तब आपको होम स्टेट कोटा मिलेगा। सो यदि आपके स्टेट की रिक्वायरमेंट ये है और आप पुणे से आके 12th किए हो, तो आपके पास केवल और केवल एक ही चॉइस बचता है कि आप ऑल इंडिया कोटा के सीट्स के लिए फाइट करोगे। विच मीन्स जो टोटल जितने भी सीट्स थे, जैसे हमने इससे पहले वाले एक सीट में डिस्कस किया था, अगर आपको ऑल इंडिया कोटा के सीट्स के लिए फाइट करना पड़ता है, इसका मतलब है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज के 7000 सीट्स के लिए फाइट कर रहे हो या फिर सोसाइटी वाले कॉलेज के समथिंग 6000। रिमेनिंग सीट्स के लिए आप एलिजिबल नहीं होगे यदि आपके कॉलेज आपके स्टेट की ये डिमांड है तो। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं। सो अभी तक जो हमने बातें कर रहे थे, अभी तक जैसे आपसे बार बार डिस्कस हो रहा है होम स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा, इसको विजुअलाइज करने के लिए, इसका जो डिफरेंस है उसमें क्या डिफरेंस है उसको समझने के लिए मैं कुछ कॉलेज का ओपनिंग क्लोजिंग रैंक का एग्जांपल लेता हूं। ओपनिंग क्लोजिंग रैंक ये कहता है कि इस कॉलेज में किस रैंक से किस रैंक तक के बच्चों को एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन मिला था। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल शेयर कर रहा हूं छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का एक कॉलेज है भारत रत्न लेट्स सी अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल कॉलेज। ठीक है, अब अगर इस पर्टिकुलर कॉलेज की बात की जाए, लेट्स से हम यहां पे लिख देते हैं एक साइड में होम स्टेट और एक साइड में हम लोग लिख देते हैं ऑल इंडिया कोटा। नाउ द थिंग इज कि यदि कोई बच्चा जो अटल बिहारी कॉलेज में जाना चाहता है, छत्तीसगढ़ का अटल बिहारी कॉलेज में जाना चाहता है और छत्तीसगढ़ की रिक्वायरमेंट है कि आपको 12th छत्तीसगढ़ से किया होना चाहिए। सो छत्तीसगढ़ का कोई बच्चा यदि पुणे आता है और उसे इच्छा है कि मैं छत्तीसगढ़ के इसी कॉलेज में पढ़ाई करना चाहता हूं, तो उसके लिए डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस ये आ जाएगा कि यदि मैं जनरल कैटेगरी को बिलोंग करता हूं तो होम स्टेट कोटा वाले बच्चे के लिए ओपनिंग क्लोजिंग रैंक है, क्लोजिंग रैंक पे हम लोग फोकस करेंगे 27,000 से 39,000 तक। होम स्टेट के लिए है 27,000 से लेकर के 39,000 तक। जबकि उसी बच्चे को यदि ऑल इंडिया कोटा से इस कॉलेज का सीट लेना है,
देन फॉर हिम द रिक्वायरमेंट विल बी 14,000 से लेके 20,000 के बीच उसका रैंक आना चाहिए। होपफुली आप ये डिफरेंस को फील कर पा रहे हो। छत्तीसगढ़ का कोई बच्चा जो छत्तीसगढ़ से ही पढ़ाई किया है 12th क्लास भी, अगर उसे होम स्टेट कोटा से अटल बिहारी कॉलेज में एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसकी रैंक 27,000 से लेके 39,000, 27,000 से लेके 39,000 तक के बीच में भी लाई करेगा तो भी एक्सपेक्टेड है प्रीवियस ईयर डेटा के हिसाब से कि उसे वो कॉलेज मिल जाएगा। बट छत्तीसगढ़ का बच्चा यदि पुणे में आकर के पढ़ाई कर रहा है या छत्तीसगढ़ छोड़ करके ऑल इंडिया के किसी भी स्टेट में जाकर के वहां से यदि 12th की पढ़ाई कर रहा है तो उस सिचुएशन में उसको उसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 14 से 20,000 के बीच में रैंक लाना होगा। सो दैट काइंड ऑफ डिफरेंस इज देयर। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी की बात कर ले, मान लो एससी कैटेगरी की बात करते हैं, सो एससी कैटेगरी में इसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मेरा रैंक होना चाहिए 93,800 से लेकर के 1,32,000 के बीच में, जबकि ऑल इंडिया कोटा से इसी कॉलेज में सीट लेने के लिए मेरा रैंक होना चाहिए 85,000 से लेकर के 1,07,000 के बीच में। सो इस तरीके से आपको हर एक जगह पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। रीजन बीइंग कि इन बच्चों का जो एडमिशन मिल रहा है, होम स्टेट कोटा का जो एडमिशन मिल रहा है वो बेसिकली 85,000 रिजर्वेशन से मिल रहा है। सो इसमें उस स्टेट के 85% बच्चों को रखा जाएगा या सिलेक्ट किया जाएगा या एडमिशन दिया जाएगा, जबकि जो ऑल इंडिया के बच्चे हैं ये बेसिकली केवल और केवल 15% सीट्स जो उस कॉलेज का होगा उतने सीट्स के लिए इनकी बात हो रही है। किसी और कॉलेज की बात करें छत्तीसगढ़ का ही, जैसे एक और कॉलेज है, मान लो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कंकेड़, जीएमसी कंकेड़, यह भी एक छत्तीसगढ़ का कॉलेज है। यहां पे होम स्टेट वर्सेस अगर एआईक्यू हम लोग स्टडी करने की कोशिश करें, दो कैटेगरी पे हम लोग फोकस करें 1 मिनट के लिए। एक मान लो मेरा जनरल कैटेगरी का बच्चा है, एक एससी कैटेगरी का है। जनरल में जीएमसी कंकेर के लिए रिक्वायरमेंट इज जनरल ओपनिंग क्लोजिंग 48 से लेकर के 68,000, 48 से लेकर के 68,000। यदि छत्तीसगढ़ से पास्ड आउट 12th का बच्चा है और उसका रैंक 48,000 से 68,000 के बीच में लाई करता है तो उसे जीएमसी कंकेर में एडमिशन मिल जाएगा। जबकि उसी बच्चे को यदि किसी अदर स्टेट से वो करके जा रहा है 12th क्लास तो उसको ऑल इंडिया में 20 से 21,000 के बीच में रैंक लाना होगा जीएमसी कंकेर में एडमिशन लेने के लिए। उसी तरीके से यदि हम लोग एससी कैटेगरी की बात करना चाहें, सो दैट इज 143 से लेकर के 170, 1,43,000 से लेकर के 1,70,000 के बीच में यदि रैंक है तो मुझे जीएमसी कंकेर में मिल जाएगा एडमिशन। जबकि यदि मैं ऑल इंडिया कोटा से फाइट कर रहा हूं तो मेरा रैंक होना चाहिए 87 से लेकर के 110, 87,000 से लेकर के 1,10,000 के बीच में। मतलब कहने का ये हुआ कि यदि मैं किसी भी स्टेट में ऑल इंडिया कोटा से फाइट करूंगा, देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि मेरा कंपटीशन लेवल हायर एज पे होगा। और यदि उसी स्टेट में मैं होम स्टेट कोटा के लिए फाइट कर रहा हूं या कर रही हूं तो मेरा जो कंपटीशन लेवल होगा रिलेटिवली कम होगा। दैट इज द बेसिक डिफरेंस जो अभी तक आदमी समझाने की आपको कोशिश कर रहा था। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट कि फिर हमें डिसीजन कैसे लेना है। ध्यान रखो, डिसीजन लेते समय हमें 3-4 बातों पे ख्याल रखना होगा। हमें बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होकर के और जज्बाती होकर के डिसीजन नहीं लेना है। रीज़न बीइंग कि हमारा जो डिसीजन है केवल और केवल 2025 के नीट एग्जाम को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, बट 2025 के बाद मैं कभी भी अगर नीट का एग्जाम देना चाहूँ 26, 27 अगर कभी हमें रिपीट करके भी देने की इच्छा होगी तो भी उस स्टेज पे मैं अपने डिसीजन को वापस से चेंज नहीं कर पाऊंगा। रीजन बीइंग कि हमारा जो 12th का मार्कशीट होगा वो क्लियर कट जेएनवी पुणे का मिल चुका होगा और मेरा 12th पास आउट स्टेट का नाम महाराष्ट्र बन चुका होगा। सो वैसे सिचुएशन में मैं परमानेंट, चाहे अगर बाद में रिपीट भी करने की जरूरत पड़ेगी तो भी उस सिचुएशन में हमको जो है केवल और केवल ऑल इंडिया कोटा के लिए फाइट करना होगा।
सो दैट इज द रीजन वाई आज का सेशन हम लोगों ने यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं, बिकॉज आपको इस चीज को सेंसिटाइज किया जा सके, आपको इस चीज को विजुअलाइज कराने का कोशिश किया गया है कि ऑल इंडिया कोटा होम स्टेट कोटा में क्या डिफरेंस है, और आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि क्या चीज आपको चेक करना चाहिए अपने फाइनल कंफर्मेशन फॉर्म को भरने से पहले। आप चिंता मत करो, यदि आप में से कोई बच्चा ऐसा है कि पहले बिना इंफॉर्मेशन के हमने कंफर्मेशन भर दिया था, तो हम लोग दोबारा से एक बार कंफर्मेशन सारे बच्चों का लेंगे कि आप अपने डिसीजन को अगर चेंज करना चाहते हो तो एक बार के लिए आपको मौका रहेगा, आप उस डिसीजन को चेंज कर सकते हो। अब एक, चूंकि हमने भी पढ़ाई अपनी नवोदय से करी है, सो बीइंग अ सीनियर ऑफ नवोदय और बाद में दक्षिणा का भी स्कॉलर रहा था, सो बीइंग अ नवोदय एलुमनी एज वेल एज ए दक्षिणा स्कॉलर, मैं कुछ बेसिक एडवाइस, बेसिक सजेशन आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। ये ऐसे एडवाइस हैं, ऐसे सजेशन हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके फाइनल कॉल लेने के लिए, आपके डिसीजन को कंफर्म करने के लिए कि आपको क्या 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 चीज ध्यान में रखना है ये डिसाइड करने से पहले कि आप जेएनवी पुणे पढ़ने आना चाहते हो कि नहीं। सो द थिंग इज, पॉइंट नंबर 1 विल बी, आपको ये चेक करना है कि आपका स्टेट का क्या रिक्वायरमेंट है, आपका होम स्टेट का, क्योंकि आपको ये बखूबी बताया जा चुका है कि महाराष्ट्र छोड़ करके बाकी किसी भी स्टेट के बच्चे हैं तो उनको जो है महाराष्ट्र का होम स्टेट कोटा तो नहीं मिलेगा। सो योर फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज कि आपको ये चेक करना चाहिए कि आपका अपना स्टेट, आप छत्तीसगढ़ के हो, आप एमपी के हो, आप महाराष्ट्र के हो, आप जहां के भी हो, आपका अपना जो स्टेट है वहां का क्या रिक्वायरमेंट है। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू चेक, दैट यू हैव टू गो थ्रू। एक वेबसाइट है कैरियर 360 करके, या उसका पीडीएफ बना करके सत्यदीप भेजा होगा आपको मेल पे, कल उससे शेयर हुई थी ये बातें, तो पॉसिबली उसमें आप चेक कर सकते हो। और उसके अलावा भी आप अच्छे से गवर्नमेंट कॉलेज के वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हो कि उस कॉलेज में एडमिशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग, ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में होना चाहिए, इसके बाद ही आप आगे के डिसीजन ले सकते हो। सेकेंड थिंग इज, आपको अपना पोटेंशियल जज करना चाहिए। पोटेंशियल इन द सेंस कि एक तो हो गया जज्बाती वाला पोटेंशियल, नीट 2025 में तो ऑल इंडिया रैंक मेरा ही है, बाकी लोग उसके बाद ही एग्जिस्ट करेंगे, तो ये तो क्या हो गया, ये मतलब अच्छी बात है, हम चाहेंगे कि आप में से कोई भी बच्चा जो है सो आ करके यहाँ से नीट AIR 1 ले करके जाए, बट ये भी फैक्चुअल बात है कि इस टाइप के जो टारगेट होंगे ये थोड़ा सा एग्जैगरेटेड टारगेट होगा, हायर एज पे टारगेट होगा, और हर एक बच्चे का वो पोटेंशियल नहीं होता, ये भी सच्ची बात है। सो आपको ये जज करना चाहिए कि आपका पोटेंशियल क्या है, क्योंकि इसी पोटेंशियल के बेसिस पे आपको कॉल लेना पड़ेगा कि आप ऑल इंडिया कोटा के लिए फाइट करने जा रहे हो या फिर होम स्टेट कोटा के लिए फाइट करोगे। बिकॉज जिन स्टेट्स में होम स्टेट की रिक्वायरमेंट 12th की नहीं है, जो स्टेट ये कहता है कि आप 12th कहीं से भी करो हमें दिक्कत नहीं है, उन बच्चों के लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे स्टेट्स तकरीबन 8-10 के आसपास हैं ऑल इंडिया के, लेकिन जिन स्टेट्स का ये रिक्वायरमेंट है कि 12th हमारे यहाँ से करना है, उन बच्चों के लिए बहुत क्रूशियल हो जाता है ये जज कर पाना कि मेरा ट्रू पोटेंशियल कितना है, क्या सच में मैं ऑल इंडिया कोटा के लिए फाइट कर पाऊंगा। बिकॉज ऑल इंडिया कोटा ऐसा चीज है जिसमें कि अभी जैसा हमने स्लाइड्स में देखे थे कि सेम कॉलेज लेने के लिए, ध्यान रखना, सेम कॉलेज लेने के लिए मुझे ऑल इंडिया कोटा में बेटर परफॉर्म करना है। बस यहां पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, केवल और केवल डिफरेंस ये होगा कि ये बच्चा छत्तीसगढ़ का है, ये नॉन छत्तीसगढ़ का है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। और इसी डिफरेंस की वजह से उसको इतना ज्यादा रैंक में डिफरेंस आ जाता है, या फिर इसी रैंक के हेल्प से हो सकता है कि मैं ऑल इंडिया कोटा, अगर ये मेरा रैंक आ रहा है, अगर ऑल इंडिया कोटा से ये है, तो हो सकता है कि छत्तीसगढ़ का कोई और बेटर कॉलेज मैं ऑप्ट कर पाता यदि मैं ये रैंक लाता और मैं भी छत्तीसगढ़ का पर्सन होता। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों बातों में। तो सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है ऑल इंडिया कोटा या होम स्टेट कोटा डिसाइड करने से पहले अपने पोटेंशियल को फील करना है कि मेरा ओरिजिनल पोटेंशियल कितना है। थर्ड वन इज, आपको फ्यूचर रिस्क से अवेयर रहना है। फ्यूचर रिस्क क्या है? फ्यूचर रिस्क ये हो रहा है कि जैसे आज के डेट में अगर रियल में बात किया जाए तो दक्षिणा में जितने बच्चे अभी तक प्रिपेयर किए हैं, लाइक 11-12 की पढ़ाई पे यदि स्पेशली बात किया जाए, तो
करीब करीब 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर एबल टू गेट द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इजीली. हाउएवर रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एबल टू गेट द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन देयर सेकेंड अटेम्प्ट. मतलब कि ज़्यादातर बच्चे, आधा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में रहते रहते फर्स्ट अटेम्प्ट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट ले लेते हैं. बट जो बच्चे ऐसा नहीं कर पाते हैं वो नेक्स्ट ईयर या तो घर से पढ़ाई करके या किसी और कोचिंग में स्कॉलरशिप की हेल्प से पढ़ाई करके वो फाइनली जो है किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच पा रहे हैं. आज के डेट में दक्षिणा स्कॉलर में रिपीटर अगर जोड़ दो, रिपीटर इन द सेंस कि एक आध साल ड्रॉप करके, तो 90% से ज़्यादा बच्चे आराम से जो है गवर्नमेंट कॉलेज को पहुंच पाते हैं. बट द थिंग इज कि इस सिचुएशन में जबकि मेरा 12th क्लास का स्टेट चेंज हो रहा है और मेरा होम स्टेट डिमांड करता है कि आप 12th मेरे यहाँ से किए होना चाहिए, या अगर मुझे ऑल इंडिया कोटा के लिए ही केवल ऑप्शन है, तो याद रखना आपका सेकेंड अटेम्प्ट में भी, थर्ड अटेम्प्ट में भी या एनथ अटेम्प्ट में भी आपका यही सिचुएशन बना रहेगा. आपको केवल और केवल ऑल इंडिया कोटा के लिए ही परमानेंट फाइट करना होगा. मतलब आप अगर बाद में रिपीट कर रहे हो तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं बचेगा फिर कि आपका होम स्टेट चेंज हो जाए किसी तरीके से. सो दैट इज वन ऑफ द फ्यूचर रिस्क दैट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ. एंड लास्ट वन इज, लास्ट पॉइंट जो आपको कॉल लेने में मदद करेगा, वो मदद ऐसे आपको देखना है, आप अपने घर का सिचुएशन जज करो और ये भी ध्यान रखने की कोशिश करो कि लेट से अगर तुम यहाँ आते हो जेएनवी पुणे, अगर तुम पढ़ाई करने के लिए आते हो तो नेचुरली आपका पढ़ाई का स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा. आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगे, उन क्लासेस की मदद से आपका ओवरऑल लेवल बेटर होगा. सो यदि आपके घर की सिचुएशन ऐसी है कि आप किसी भी सिचुएशन में बाहर में जाकर के कोचिंग नहीं कर रहे हो, मतलब अगर मैं जेएनवी पुणे नहीं आया तो मोस्ट पॉसिबली मुझे अपने जेएनवी में रह करके पढ़ाई करनी होगी, और एक साल के बाद भी मेरे पास मेरे घरेलू स्थिति ऐसे हैं कि मैं एक साल के बाद भी चाहूँ तो चाह करके भी मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा, चाह करके भी मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाऊंगा. अगर आपका घर का सिचुएशन ऐसा है और उस कंडीशन में अगर आपको बाद में फ्यूचर में केवल और केवल बीएससी करने का ऑप्शन है या अदर कोर साइंस के कोर्सेज करने का ऑप्शन है, मतलब कि आप कोचिंग किसी भी तरीके से नहीं कर पा रहे हो फाइनेंशियल कारण से या किसी और रीजन से, इन दैट कंडीशन आपको फिर जरूर जेएनवी पुणे आना चाहिए. मतलब कि यदि आपको ये पता है कि अगर मैं एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाया तो उस सिचुएशन में मेरे पास दूसरे ऑप्शंस हैं, मैं दूसरा रास्ते पे आगे बढ़ना है, मुझे बीएससी ही करना है, तब तो आपको जेएनवी पुणे आना चाहिए. रीजन बीइंग कि भले ही आपका होम स्टेट कोटा का चांस बंद हो जाता है, बट आपके पास ये तो चांस रहेगा कि आप ऑल इंडिया कोटा के लिए फाइट करो, पॉइंट नंबर 1. और पॉइंट नंबर 2 कि आज के डेट में किसी भी अदर कॉलेज में जहां पे भी ग्रेजुएशन में एडमिशन हो रहा है वो सीसेट का एग्जाम लेते हैं, सीयूईटी या कुछ ऐसे करके कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है, कॉमन अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट. तो आपको जब सीयूईटी में बैठना पड़ेगा तो वहां पे अगर आपके सब्जेक्ट तैयार हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अगर आपका बेटर है, तो आपको अदर अच्छे कॉलेजेज में एमबीबीएस कोर्स छोड़ करके दूसरे कॉलेज अगर आपको पढ़ने की इच्छा है तो उन कॉलेजेज में आपको एडमिशन लेने का चांस रहेगा. तो अगर आपको ये घरेलू सिचुएशन पता है कि किसी भी स्थिति में मुझे बाहर में कोचिंग तो करा ही नहीं सकते हैं घर वाले लोग, तब भी आपको ये कॉल लेना चाहिए कि मुझे ऑल इंडिया कोटा के लिए फाइट करना है, और यदि फाइट नहीं कर पाया तो बाद में मुझे रिग्रेट नहीं होगा क्योंकि मुझे एक बेटर क्वालिटी एजुकेशन लेने का चांस मिल पाया. सो दिस वे फ्यू पॉइंट्स जो कि आपको बताना इंपॉर्टेंट था. ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको कॉल लेने के लिए, फाइनल डिसीजन लेने के लिए हेल्पफुल होंगे. तो इस सिचुएशन में आप फैमिली फाइनेंशियल बैकग्राउंड एंड फ्यूचर प्लान विदाउट एमबीबीएस, कि अगर मुझे एमबीबीएस नहीं मिल पा रहा है तो मेरा फ्यूचर प्लान क्या हो सकता है. तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपको जरूर नोट करने चाहिए, जो आपको ध्यान में रखने चाहिए ये फाइनल कॉल लेने से पहले कि मुझे जेएनवी पुणे का कैंपस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए. सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. अब एक एक कर से आपके क्वेश्चंस को लेने का कोशिश करेंगे. होपफुली हम लोग ट्राई करेंगे कि जो बातें एड्रेस हो गई हैं उन्हें रिपीट ना करना पड़े, और कुछ अगर अलग से कोई क्वेरीज हैं तो आप उन क्वेरीज को केवल और केवल एक इन्फॉर्मेशन जो है कि मेरा स्टेट का क्या डिमांड है, इसके लिए जो मेल आपको गया होगा, जो पीडीएफ आपको अटैच करके भेजा गया है, उसको आप गो थ्रू होना और अपने होम स्टेट के जो मेडिकल कॉलेज हैं उनके वेबसाइट को चेक करना, बिकॉज वो डेटा हम लोग तैयार नहीं रखे हैं आज के डेट में कि किस स्टेट का क्या डिमांड है. उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अलावा और किसी टाइप का क्वेश्चन है तो हम एक एक कर से उसको एंटरटेन करेंगे.
ध्यान रखना अपने क्वेश्चन पूछते समय दूसरों का भी ख्याल रखना है कि दूसरा वो क्वेश्चन पूछ चुका था क्या, मतलब कि सेम बातें बार बार रिपीट न करनी पड़े, ऐसा एक्सपेक्टेड है। चलो हम लोग वन बाय वन सुनते हैं लोगों को। सर एम्स का बता दीजिए। एम्स भी आज के डेट में नीट से ही एडमिशन लेता है और एम्स के पास भी सेम एम्स का एडमिशन का प्रोसेस एक बार देख लेंगे, उसको देख करके बताएंगे कि एम्स का कैसा है, लेकिन एग्जाम एडमिशन तुमको नीट से ही होगा, ये कंफर्म है। सर ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक। ओपनिंग क्लोजिंग तो बहुत बहुत बड़ा चार्ट रहता है वो। ओपनिंग क्लोजिंग अगर एम्स दिल्ली की बात कर लो तो वहाँ पे अंडर 100 में ही काम खत्म हो जाता है, अंडर 50-60 तक ही जाता है जनरल का। अदर एम्स में जो है 1000 के आसपास लगभग लगभग चला जाता है। हाँ थोड़ा जोर से बोलो, जॉन गामू गमनू। हाँ हाँ ठीक है, वो फाइनल कॉल तुम्हें लेना है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें अच्छे से अवेयर करा देना और तुम्हें विजुअलाइज करा पाना, उस पर्पज से तुम्हें कहा जा रहा है। अदरवाइज क्योंकि थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है उसके साथ, बट ऐसा भी इतना भी हाइयर एज पे रिस्क नहीं है। रिस्क तो दुनिया में कभी ना कभी लेना ही पड़ता है। तो वो रिस्क चूंकि तुम जिस लेवल पे हो वहां पे उतना वेल अवेयर वेल हम लोग रिसर्च करके नहीं बैठे होते हैं, तो इस वजह से